ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ, ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੈ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਿਧ ਕੇ ਬਚਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਆਨੰਦ। ਇਨੂੰ ਸਰਾਹਿਓ ਤਬ ਭਇਓ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੁਲ ਚੰਦ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋਂ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਿਧ ਕੇ ਬਚਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਆਨੰਦ। ਇਨਹੁ ਸਰਾਹਿਓ ਤਬ ਭਇਓ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੁਲ ਚੰਦ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 22 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਅਤੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾ ਜਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਫਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਿਧ ਕੇ ਬਚਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਿਰਦੈ ਆਨੰਦ। ਇਨਹੁ ਸਰਾਹਿਓ ਤਬ ਭਇਓ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੁਲ ਚੰਦ।
बाबा बुढ़ा साहब जी के बचन सुन के धन गुरु रामदास महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए और नाले विचार करते ने कि भाई सिखो देखो इन्हों ने सलाहिया है, इनू सराहियो कि जिथे बाबा बुढ़ा साहब जी सिफत करते हैं सलाह करते हैं, ये तो गुरु के सिखां का भी निश्चय बनया हुआ कि धन गुरु अर्जन देव जी की जो सिफत सलाह बाबा बुढ़ा साहब जी ने की है तो सोडे कुल दे ये चंद ने, ये सोडे कुल दे श्रोमणी होणगे। चौपे बरते इनहूँ बहुत गुरे आई, सार असार परखना पाए। और सतगुरु धन गुरु रामदास जी कहते हैं भाई सिखो बाबा बुढ़ा साहब जी धन गुरु नानक साहब जी के वो आद सिख ने जिन्हों ने बहुत गुरियाई आप अपने हत्थों के नाल देंदे आए। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी आद गुरु ने गुरु अंगद देव जी ने गुरता गद्दी दी तो धन गुरु नानक साहब जी ने वडियाई बाबा बुढ़ा साहब को दी कि गुरता गद्दी वाला तिलक तुसी लाओ। धन गुरु अमरदास जी गुरता गद्दी ते बैठते हैं, तिलक की वडियाई बाबा बुढ़ा साहब को मिलती है कि यह तिलक तुसी लाउणा है। धन गुरु रामदास जी को बाबा बुढ़ा साहब जी ने अपने हत्थी तिलक लाया है। और धन गुरु रामदास जी कहते हैं इन्होंने गुरियाई बड़ी देखी तो बहुत गुरियाई आप ही देंदे आए ने। मुख जहुरे जबे जवाहर, परखे तब हो वह जग जाहर। हुण इत्थे सतगुरु जी उदाहरण देंदे ने कि कोई मुखी जोहरी होवे, हीरे की पछाण होवे ते हीरे की परख उही कर सकता है, सही कीमत पा उही सकता है। क्योंकि जे किसी को हीरे की पछाण ही ना होवे, लोगों को पता होवे कि इन्हें कदे सुनियारे का काम ही नहीं किया, ये जोहरी पुणा कर ही नहीं सकता, वो भावें असली हीरे नूं भी हीरा कही जाए ना कि भाई हीरा ही है, तो लोग बहुता यकीन करते नहीं। पर जिहड़ा जौहरी है भावें उहदे विच मिक्स भी हो जाए, जे जौहरी ने कह देना है कि नहीं ये हीरा सही है तो लोग बड़ी छेती यकीन भी करते हैं। इस तरह बाबा बुढ़ा साहब जी ने सिखां नूं सब नूं भरोसा है कि जिहड़ी परख इन्हां ने कर लेनी होर कोई कर नहीं सकता। जे इन्हां ने सलाह दिता है तो फिर धन श्री अर्जन देव जी ही गुरु होने चाहिए ने। सिर फल पैसे पंच मंगाए, जह कहते सिख सिर्फ बुलाए। हुण धन गुरु रामदास महाराज जी ने हुक्म कर दिता कि बाबा बुढ़ा सी फिर 5 पैसे ते नारियल लैके आओ। सिखां नूं हुक्म दे दिते भी जिथे जिथे सिख ने सारियां थावां ते सिने भेज दिओ, सब नूं बुलाओ। सब संगत को मेला पह्यो, चहुं दिस परवारत होए गयो। सारी संगत नूं सिने भजे गए, दूर दूर तो सिख संगतां आईयां, बहुत सारा मेला सिख संगतां दा होया। संगतां दा इकट्ठ होया, सिखां दा परिवारां दा। धन गुरु रामदास जी दे 4 सपेरे जिहड़े घेरा पै गया, वड्डा इकट्ठ होया। सर्ब निहारत कहाँ करेंगे, बड़ सुत को और क्रोध धरेंगे। कि सारे हुण सतगुरु धन गुरु रामदास जी वाल वेखदे ने कि सतगुरु जी ने इन्ना इकट्ठ किया है, इन्नी संगत बुलाई है, परिवार के सारे जी बुलाए ने कि धन गुरु रामदास जी हुण करनगे की। क्योंकि सिखां नूं ते पता लग गया सी कि पृथ्वी ने जो कुछ किया, जिहड़ी खोट की कि अज गुरु साहिब जी ने कुछ दिनों बाद एडी वड्डी पंचायत कह लिए संगत बुलाई है, तो गुरु साहिब जी हुण करनगे की कि बड़ सुत सो और क्रोध धरेंगे। बहुत सारे तो ये विचार करके बैठे ने कि वड्डे पुत्र दे नाल प्रीति चंद नाल गुस्सा करनगे। संगत इस करके बुलाई कि प्रीति चंद नूं बेदखल कर देंगे। भावें गुरु साहब ने बचन पहलों कह दिते सन कि प्रीति चंद नाल साडा कोई लैना देना नहीं, इस नूं छड्ड दिता है। पर सिखां दे मन विच अज भी यह है बहुत सारियां दे
कि गुरु साहब जी पता नहीं प्रीति चंद तो गुस्सा करनगे। तब श्री रामदास उठ करके श्री फलियार पैसे कर धर के कहते सारे दे मन में इवें दे वक्खो वक्खरे सवाल सन कि गुरु साहब जी अज पता नहीं की करनगे, की हुक्म करनगे। इन्हें नूं धन गुरु रामदास जी उठे। बाबा बुढ़ा साहब जी तो 5 पैसे नारियल धन गुरु रामदास जी ने आप अपने हाथ में लए और सतगुरु जी ने वो 5 पैसे नारियल फड़ के 3 प्रदर्शन को तब देन श्री अर्जन सुत लायक चीन। धन गुरु रामदास महाराज जी ने अपने पुत्र श्री अर्जन देव जी को गुरता गद्दी के लायक समझ के, इस तखत के लायक समझ के धन गुरु रामदास जी ने आप अपने पुत्र श्री अर्जन देव जी दी 3 परिक्रमा कीतियां। और देखो इत्थे गुरु साहब जी का जिहड़ा सिद्धांत है कि बिल्कुल शरीर गुरु नहीं, क्योंकि जे शरीर करके मनीए शरीर करके तो फिर वो पुत्र है। धन गुरु अर्जन देव जी पुत्र ने, जे शरीर करके देखिए फिर पुत्र नूं प्यो नमस्कार कदे नहीं करता, क्योंकि ये जोत उही है जिहड़ी धन गुरु नानक साहब जी के अंदर सी। जोत उही है जिहड़ी अज धन गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर है। ये गुरता गद्दी उस जोत नूं मिलनी है। रिश्ते विच भावें पुत्र ने, पर धन गुरु रामदास जी ने आप 3 परिक्रमा कीतियां। तिन के आगे धर मस्तक टेका अत आनंद पा जल्द विवेका। धन गुरु रामदास जी ने 3 परिक्रमा करके श्री अर्जन देव जी के चरणों 'च अपना सिर रख के मत्था टेकिया है। और कईयों के मन में शंका भी आया कि पुत्र नूं भी कोई मत्था टेकता है, क्योंकि जिहड़े केवल शरीरां नाल जुड़े ने वो समझते हैं कि पुत्र नूं मत्था को टेकता है। पर धन गुरु रामदास जी जानते हैं कि इन्हां दे अंदर धन गुरु नानक साहब जी की जोत है। ये जोत के मालक ने ते शरीरां करके ने अज वो मालकता करके धन गुरु रामदास जी ने नमस्कार की है। पुन सतगुरु की आयस पाए बुढ़ा उठियो हृदय हर खाए। जदों धन गुरु रामदास जी ने बड़े आनंद दे विच मत्था टेकिया और फिर बाबा बुढ़ा साहब जी को आयस देते हुक्म दिता कि भाई बुढ़ा जी अज तक श्री अर्जन देव जी कहते सो, पर अज तो ये सारे सिखां दे कल्ले श्री अर्जन देव जी ने श्री गुरु अर्जन देव जी हो गए ने। अज तो ये गुरु ने। और गुरु साहब का हुक्म सुनने नाल बाबा बुढ़ा साहब जी बड़े प्रसन्न होए। उस वेले प्रसन्न होकर उठे ने। भरियो भाग सो भाल सो निका निज करते सुठ कीन सटिका। बाबा बुढ़ा साहब जी बड़े प्रसन्न होकर गए ते जेड़े धन गुरु अर्जन देव जी के भरियो भाग सो भाल जो निका, जिन्हां दा मत्था पहलों बड़े सोहने भागां दे नाल भरिया होया है, उस सोहने मत्थे दे उत्ते धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने अपने हत्थों तिलक लाया है, टिक्का दिता। सब सो सतगुरु बाके उचारे सुनो सिख सब तुम गुर प्यारे। टिक्का ला के बाबा बुढ़ा साहब जी ने 3 परिक्रमा कीतियां। बाबा बुढ़ा साहब जी ने नमस्कार की, मत्था टेकिया। और धन गुरु रामदास जी ने फिर बचन कहे, भाई सिखो सुनो सिख सब तुम गुर प्यारे, तुसी सब गुरु दे प्यारे हो। श्री अर्जन मम रूप निहारो जिम मुझ लखो तथा उरतारो। धन गुरु रामदास जी कहते हैं, भाई सिखो गुरु अर्जन देव जी नूं अज तो बाद मेरा ही रूप समझना है। जिवें तुसीं मैनू गुरु समझ के मत्था टेकते रहे, अज तो बाद धन श्री गुरु अर्जन देव जी नूं अपना गुरु तुसीं सारिआं ने जानना है। गुरता गादे पर ते थिरियो हालत पलत भार जो सब धरियो। धन गुरु रामदास जी कहते हैं, भाई सिखो अज तो बाद गुरता गद्दे ते श्री गुरु अर्जन देव जी विराजमान ने। लोक ते परलोक दा जिन्ना भार है
ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਭਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਕੋ ਦੁਖ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ, ਕਾਰਜ ਅਣਕ ਜਗਤ ਮੈਂ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਰਜ ਅਣਕ ਜਗਤ ਮੈਂ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਵਾਰਨਗੇ। ਉਠੋ ਸਕਲ ਬੰਧਨ ਇਸ ਕੀਜੇ, ਨਾਨਾ ਭਾਂਤ ਉਪਾਇਣ ਦੀਜੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭਾਈ ਉਠੋ, ਉਠੋ ਸਗਲ ਬੰਧਨ ਇਸ ਕੀਜੇ। ਸਾਰੇ ਉਠੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਆਨੰਦੇ, ਬੋਲਤ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬਿਲੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਆਨੰਦਮਈ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਧਰ ਨਿਕਟ ਅਕੋਰ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਨਸ ਕਰ ਜੋਰ। ਤੇ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ। ਸਭ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਤਸਵ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਮੈਂ ਹੋਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਰਵ ਉਦਤ ਜੋਵਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸਵ ਹੋਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਤਾਮਰਸ ਬਿਕਸੇ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਜਗਿਆਸੀ ਗਨ ਮੁਦਤ ਮਲੰਦ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖਿੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਗਿਆਸੂ ਭਵਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਦੇਵ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਉਰੇ ਆਸਾ, ਭ੍ਰਮ ਤਮ ਜੁਤ ਇਹ ਨਿਸਾ ਬਿਨਾਸਾ। ਪਰ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਭਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਧੀ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਆਸ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਸ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਕੇ ਪੱਖੇ ਉਡਗਣ ਦੁਰੇ, ਨਿੰਦਕ ਪੇਚਕ ਮੁਖ ਦ੍ਰਿਗ ਜੁਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪੱਖੀ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪੱਖੀ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਹੀ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਲੂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਵੇਂ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੁੱਤ ਚੰਦ ਮਨੰਦ, ਫਿੱਕੋ ਪਰਿਓ ਤਿਸੇ ਸ਼ਨ ਮੰਦ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛਿਪਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉੱਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਬਾਰ ਗਇਓ ਅਧਿਕ ਦੁਖ ਪਾਵਤ, ਨੇਵ ਗਰੇਵ ਕਰ ਬਸ ਨ ਬਸਾਵਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਬਲਿਆ, ਬੜਾ ਸੜਿਆ, ਪਰ ਵਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ।
नीवी पा के केवल बैठा रहा, देखता रहा। महादेव तूषण थिर थिर हरख न शोक हृदय कुछ कियो। ते महादेव मस्तक बादे सन, वो पहलों भी चुप्पी रहिंदे सन, अज भी चुप्पी। वो ना बहुता खुश होए ना उन्होंने कोई दुख होया। धन गुरु अर्जन देव जी गुरता गद्दी ते बैठे ने छोटे भरा, कोई बहुती खुशी नहीं मनाई तो कोई दुख भी नहीं मनाया कि क्यों बैठ गए ने, वो चुप रहे ने। सोना जननी बड़ भागा भानी गुर अर्जन पा मुदत महानी। एक खबर जननी बीबी पानी धन गुरु अर्जन देव जी के माता पानी जदों उन्होंने सुनी तो बड़े आनंद विच बड़े खुशी के विच ने। सिमरत पिता बाक सुख पायव नहीं बंसते गुरता जायव। बीबी पानी जी नूं पता लग्या कि पुत्र अर्जन देव जी नूं गुरता गद्दी मिल गई है ते अपने पिता धन गुरु अमरदास जी के बचनों नूं फिर चेते करते हैं कि गुरु पिता ने बचन कहे सन कि धीए ये बंश तुहाडे विच रहेगी, गुरता गद्दी किते नहीं जाती। पिता गुरु धन गुरु अमरदास जी के बचनों नूं चेते करते हैं कि दोता बाणी का बोझता होएगा। उन्होंने बचनों नूं चेते करते हैं कि जदों छोटे जी बाल अवस्था दे विच नाने गुरु के पलंग ते चढ़न लगे सन तो पिता गुरु ने कहा सी कि यह गुरता गद्दी तख्त लैन की इन्नी छेती ना कर, अपने प्यो तो लई, अपने पिता तो लई। पिता गुरु को कहो अटल है, चले समेर नहीं सो चल है। और बेबे भानी जी ने अपने गुरु पिता के बचनों के पहले भरोसा सी कि उन्होंने बचन अटल ने। समेर पर्वत हो सकता किसी पासे हिल जे, और धन गुरु कलगीधर पातशाह ने पावन बचन भी कहे से जेडे भरोसे वाले सूरबीर योधे ने ना, वो इन्ने यकीन के नाल कहंदे ने कि कर पर्वत पंख हलै। पर्वत हो सकता है कि खंभ ला के किसी पासे हिल जे या उड़ भी जाए, पर ना हलेंगे सूरबीर योधा जो मैदान के पैर रख दे, वो कहता साडे पैर नूं कोई नहीं हिला सकता। बीबी भानी जी कहते ने पर्वत हो सकता हिल जाए, पर गुरु पिता के बचन अटल ने, वो कदे हिलते नहीं। पूरे पर्वत के जिवें दी खबरां आउंदियां ने हिलदा भी पिया। हुण साइंस मनती है ना कि सब तो उच्चा पर्वत मेरू पर्वत हिमालय पर्वत ये अद्धा इंच हर साल जिहड़ा अपनी थां तो हिल रहा है। पूरे धरती तो थले प्लेटां ही ऐसी ने ना जी, तो जिदन किते हिल गया तो फिर हिंदुस्तान दे विच के आसे पासे जो कुछ तबाही होगी वो तो फिर वही जानता है, पर यह पर्वत हिल रहा है। बीबी भानी जी कहते ने पर्वत हो सकता हिल जे, पर गुरु पिता के बचन अटल ने, वो कदे हिलते नहीं। सभा बिकै सिरे सतगुरु तबै, बैठे चहुंदिस संगत सभै। कहते उदों धन गुरु रामदास जी गुरु अर्जन देव जी सभा दे विच बैठे ने, सभा भरी हुई चारे पासे सिख संगत है। श्री अर्जन सुत के दिस देख, कहो बाक मन मुदत विसेक। ते जिथे धन गुरु रामदास जी कुछ समा पहलों आप बैठे सन, अज उस थां ते पुत्र श्री गुरु अर्जन देव जी ने। धन गुरु रामदास जी सिख संगतां की तरह उन्होंने दूजे पासे होके बैठे ने। पुत्र गुरु धन गुरु अर्जन देव जी के मुख वाल धन गुरु रामदास जी ने वेख्या है। होत शब्द को चतुर्थ पद सब, करे तेन एक चाहिए अब। धन गुरु रामदास जी कहते ने कि पुत्र गुरु अर्जन देव जी शब्द नाल गुरु वरतते हैं, क्योंकि गुरता गद्दी ते बैठ गए ने कि तुसी 3 अंक बनाए, 3 पदे शब्द दे लिखे होने चाहिए है कि वो शब्द का भोग भी पाया जाए, चौथा पदा भी उच्चारण करो। रचो सुपत शुभ निकट हमारे, पावो शब्द भोग मत धारे।
कि पुत्र गुरु अर्जन देव जी साढ़े हुण इत्थे बैठे हुए सभा दे विच ही उस चौथे पद की भी रचना करो। उस चौथे पद की रचना करके उस शब्द का भोग पाओ, शब्द नूं पूरा करो। जिसको जग मह सिख कनेरे पटे सुने मुद पाए बडेरे, कि जेड़े शब्द नूं संसार दे विच सिख पढ़ के सुन के बड़ी खुशी प्राप्त करनगे, जिंदे विचों बड़ा प्यार सिखां नूं मिलेगा, क्योंकि शब्द ही सारा प्यार दा है। ये चौथे पदे की रचना करो, साडे बैठिया करो, संगत दे विच करो। मुदत बृद्ध होए कर तब कह, सतगुर बाक उचित ही है। ये सुन के नार प्रौढ़ता कर दी बाबा बुढ़ा साहब जी ने कि सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी गुरु साहब जी बिल्कुल उचित कहते हैं कि पृथ्वी का पाया होया भरम भी किसी मन दे विच न रहे। उन्हें तो जड़ियाँ चिट्ठियाँ रखियाँ सन, कहता सी मैं लिखियाँ ने, वो ही नहीं सुना सकिया। अगला पता तो उन्हें कित्थों रचना सी। पर सतगुरु जी कृपा करो, हुणे शब्द का भोग पाओ, सारी सिख संगत नूं सुनाओ। श्री अर्जन सुन के तह समो, रचियो सो पद पित को कर नमो। धन गुरु अर्जन देव जी ने बचन सुने, हुक्म सुनिया। उस वेले पिता गुरु धन गुरु रामदास जी नूं नमस्कार की। गुरु साहब की आग्ञा लैके वो चौथा पदा वो शब्द गुरु साहब ने फिर उच्चारण किया और कवि संतोख सिंह जी ने पदा इत्थे अंकित किया है। भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर मह पाया। सेव करे पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हों कोली जियो कोल कमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। पूरे शब्द में जो तुम पढ़ोगे, बाणी पढ़ने वाले ये जानते हैं कि शब्द के रहाओ के अगे एक पाया है। एक का मतलब शब्द एक है, पूरा हो गया है। इत्थे कुल 4 पद्यां वाले शब्द 8 ने, अगे 8 पाया हुआ है कि ये शब्द जोड़ा एक इत्थे पूरा होया है। कुल मिला के ये धन गुरु अर्जन देव जी के इत्थे 8 शब्द ने, 8 पाया है। और अखरी अर्थ जोड़े बड़े सौखे ने कि भाग होवा गुर संत मिलाया। प्रभु परमेश्वर ने कृपा की, भाग वड्डे चंगे जागे कि संत गुरु दे नाल मिला दिता है। प्रभ अविनाशी घर मैं पाया, जिंदा कदे नाश नहीं। वो प्रभु समान सतगुरु धन गुरु रामदास जी घर दे विच प्राप्त कर लिया है कि जिन्हां ने किते जाना नहीं, जेड़े है ही अविनाशी, क्योंकि शरीर ने ज्योति ज्योत समा जाना है। पर धन गुरु रामदास जी वो धन गुरु नानक साहब की जोत अविनाशी है। हुण वो इस घर दे विच रह के भी नाल ते जाण तो बाद हिरदे रूपी घर दे विच भी नाल ने। ते फिर इत्थे अरदास बेनती है कि हे रब जी सतगुरु जी कृपा करियो, हुण सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। कि असी सतगुरु जी तुहाडे दास हाँ, कृपा करो एक चसा जिन्ना समा भी हुण विछड़ियो ना, तुहाडी सेवा दे विच मैं लगा रहां। और जेड़े मिले हुंदे ने फिर गुरु साहब जी कहंदे ने मिलिया होए ना विछड़ा जे मेला हुई, क्योंकि शरीरां दा विछड़ना कुछ होर है ते जेड़े विछोड़े की गल गुरु साहब जी कहंदे ने फिर वो कदे हुंदा नहीं। हों कोले जियो घोल कुंभाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। सतगुरु जी कृपा करो अपने गोले दास बना के रखियो, तुहाडे तो सदा कुर्बान जावां। चौपे श्री गुरु रामदास सुन हरखे, बाणी बहुत करेंगे परखे। धन गुरु रामदास महाराज जी, क्योंकि उस वेले पदा उच्चारण किया, उस वेले पदा बनाया। ये सुन के बड़े परेशान होंगे, बाणी बहुत करनगे, बाणी बहुत रचना करनगे। अच्छे साफ बनावट केरी, आशे साफ बनावट हेरी। रचे तुरत नह लागस देरी,
क्योंकि इन्नियां सोहणियां पंक्तियां बिल्कुल उन्हें पहला पदियां दे नाल मिलदियां होईयां ते रचना कर लग्या बिल्कुल देरी लगी नहीं। इन्हां ने बाणी बहुत बनाउणी है, बहुत उच्चारण करनी है। सिर मुख ते सुत सो फुरमायव, सहत न मरता शब्द बनायव। धन गुरु रामदास महाराज जी ने फिर अपने मुख तो बचन किए, सिख संगतां दे विच किया कि पुत्र अर्जन देव, ये जिहड़े बचन ने आप जी ने बड़ी निम्रता दे विच इन्हां दी रचना की, शब्दां दे विच ही निम्रता है। और धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की निम्रता जदों धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ीए कि देखो एडा वड्डा ज्ञान का सागर एक थां ते इकट्ठा करके अखीर ते सतगुरु जदों मुदामणी भोग पाउंदे ने ते इक्को गल कहंदे ने, निम्रता उत्थों सानूं नज़र आउंदी है कि तेरा कीता जातू नहीं, कि तेरा कीता होया मैं कुछ नहीं जानिया, पर जिन्ना को तू जनाया है कृपा करके उन्ना को जानिया है। तो अखीर ते भी तरस दे विच आके रहमत मंगते हैं कि सतगुरु जी कृपा करी, मेरे विच गुण कोई नहीं, पर तरस दे विच आके अपने नाल मिला के रखी। हुण धन गुरु रामदास जी इत्थे इस तरह की सिफत करते हैं, कुछ बचन विलास धन गुरु रामदास जी ने कीते ने। जिसको पठ सुन करे विचारण, करे हंकार समेत विकारण। के भाई सिखो इवें दी जिहड़ी बाणी गुरु अर्जन देव जी बाणी जिहड़ा पढ़ेगा सुनेगा विचारेगा, जिथे उन्हां दे सारे विकार दूर होणगे हंकार भी दूर होवेगा, क्योंकि हंकार सारिਆਂ ਦੀ जड़ है। हाथ जोर पित ने सुन बानी, अत अधीन होए बंधन ठानी। पिता धन गुरु रामदास जी के बचन सुन के धन गुरु अर्जन देव जी ने हाथ जोड़ के बड़ी निम्रता दे विच फिर नमस्कार की। करण करावण तुम ही आहो, मैं अनुसार सदा जिम कहो। कि गुरु पिता सतगुरु जी सब कुछ करन ते सब कुछ कराउण दे समर्थ दे तुसीं आप हो। मैं तो सिर्फ आप जी के हुक्म विच आप जी ने हुक्म किया कि उचारो तो उचारण कर दी। अगे सतगुरु जी जिवें कृपा करनगे वो कल विचारांगे। समय के मुताबिक इतनी बेनती प्रवान करनी है जी। होईयां भुलां दी खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना दे नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु